Hello viewers, welcome you all to my new video. Today, this video is all about a new chapter, the portrait of a lady. This topic is written by famous Indian novelist, famous Indian journalist, Khushwant Singh. This particular chapter, the portrait of a lady, is prescribed for the second year student of CHSE Odisha board. In this chapter, the writer Khushwant Singh narrated his grandmother's picture very beautifully. This chapter is a very good autobiographical account of a writer's childhood, how he spends his childhood with his grandmother in the village. What was his relationship with his grandmother, how he enjoyed his quality time of his childhood with his grandmother. These all we come to know in this topic. Before going to the chapter, before going to the text of the chapter, we have to focus on a bit on the life of the writer, who the writer is, what are the great qualities of the writer. Mr. Khushwant Singh is one of the famous and foremost Indian English novelist, who is also regarded as one of the foremost literary critics and foremost journalist of India, and he has written lots of columns in Daily newspaper, in the caption, in the title of with malice towards one and all. Okay, under that column, under that category, under that topic, under the title of with malice one and all, with malice towards one and all. Okay, ई टाइटल अंडर रे से बहुत गुड़ाए कलम लिखिछन्ति इंडियन इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो थे कि से टार्गेट करुले पॉलिटिकल इश्यूज को, जो थे कि से टार्गेट करुले करप्शन को, ये सब को टार्गेट करिकी से लिखुले. एंड ही इज ऑल्सो ए ग्रेट और फेमस इंडियन novelist, because one of his book, The Train to Pakistan, is known as his magnum opus, is known as his best or finest creation. Okay, and especially Khushwant Singh is regarded as the partition novelist. Maximum of his novels are based on the theme of partition of India and Pakistan. He was born in the year 1915 and died in 2013, and he make his debut as a journalist, and later he switched over his interest on novel writing. Okay, his famous novel The Train to Pakistan is based on the separation of India and Pakistan. He started writing that novel Train to Pakistan after the independence of India in the year 1947, and he completed that novel after 10 years, that is in 1957. Here, this particular chapter, he is going to canvases, he is going to portray the beautiful picture of his grandmother. Okay, let's see how Khushwant Singh portrays his grandmother in this beautiful short story, in this topic, that is the portrait of a lady. Dear student, what do you mean by portrait? Portrait means picture, portrait means image, but here
The caption tells that portrait means narration about a lady. Okay, here the lady is his grandmother. Okay, he narrate beautifully about his grandmother. Okay, that's why the title is the portrait of a lady. Okay, let's see what is written in warm up of unit 1. Do you enjoy your grandmother's company? Are they good companion? Before going to the text, there is a few lines for our readers that do you enjoy your grandmother's company? Yes, we always enjoy our grandparents' company. Those who are fortunate enough in their life to get the companionship of their grandmother and grandfather, they are very much lucky. Okay, and we all know that grandparents are best companion to their grandchildrens. Okay, they always love, they always fond of children. Grandparents always fond of children, and a child or children, they always gain very much enjoyment, very much good company, okay, of their grandparents. Are they good companion? Yes, grandparents are the good companions to their grandchildren. Children grow up with a typical image of their grandparents in their mind. Any other thoughts is almost revolting to them. Read the following unit of the text carefully and note how the writer portrays his grandmother. And we all know that while we are in a tender age, when we are in a childhood days, that time we have a type of typical ideas in our mind regarding our grandparents. Okay, and someone who wants to change that typical ideas, it is quite difficult in our part to replace that idea, that typical idea with the new ideas. Okay, जो आइडियाटा आम ग्रांड को लेकिन आम बढ़ी था छुआ बेलू से आइडियाटा को जब कहीं चेंज करने चाहे तो सहीटा आम माइंड डिफिकल्ट हुए. तो से भाया किसी आइडियाटा को लेकिन खुशवंत सिंह तांकर पिला बेलाटा को वर्णना करुँच. ओके, जोटा कि पक्षे डिफिकल्ट होता चेंज करने. ओके, जोटा कि ग्रांड पेरेंट्स को लेकिन जो आइडियाटा माइंड रे थिला, ग्रांड मदर को लेकिन जो आइडियाटा माइंड रे थिला, परवर्त स्टेज रे ताकू जेतेबेले केही कहूले नाही एटा नथिला तो सीधा से भाविया को मानिया को नाराज थे. तो बर्तमान ये यूनिट को जीवा, यूनिट भितर को जीवा, यूनिट 1 को जीवा, देखा खुशवंत सिंह तांकर पिला बेल समयटा को जोटा कि जेजेमा सहित बीतई थे आउ तांकर जेजेमा विषय रे कौन सब वर्णना करुछंती. ओके, तो देखा केमिति भाव रे प्रांजल भाव रे भाषा माध्यम से जेजेमांकर चरित्र को, जेजेमांकर व्यवहार को, जेजेमा सहित बीतई समय को से वर्णना करुछंती. देखिबा आमे वर्तमान यही यूनिट रे पढ़िले आमे देखिबा, टेक्स्ट को जीवा देखिबा. Dear viewers, after watching this video, do not forget to like and share with your friends and give your valuable comments, and at last subscribe my channel and give your valuable support to me so that I will be able to provide you new videos on new topics. Thank you. The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Let's begin with the text. The text. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. As I have told you that this particular chapter is all about Khushwant Singh's grandmother. He is going to portray, he is going to narrate, he is going to present the lifestyle, present the picture of his grandmother by his beautiful writing. Okay, at the beginning of the chapter, at the beginning of the topic, he said that
like everyone's grandmother, I was also a grandmother who was old. ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଥାଆନ୍ତି, ଖୁଶୱନ୍ତ ସିଂ କହିଲେ ମୋର ବି ସେମିତି ଜଣେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମା ଥିଲେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଥିଲେ ଯିଏକି ଓଲ୍ଡ ଥିଲେ. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. The peculiar part is that he found his grandmother in a wrinkled state, in a old state since 20 long years. तो ये कहवा से चाहूँगी कि से तांकर ग्रांड माँ को दीर्घ 20 वर्ष काल सेम अवस्था एंड सेमिति रिंकल फेस रे से देखुछंती, तांकर अवस्था रे कौनसी परिवर्तन हो नाही. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. Okay, and here he is going to present some idea which revolted in his mind during his childhood days, when some people said that, some people some people said to Khuswant Singh when he was child that once his grandmother was young and pretty, but the child Khuswant Singh is unable to accept that thing, because he could not get the idea that he found his grandmother in the wrinkle stage, in the old stage for 20 long years. How come a lady, how come his grandmother, he was once young, and such type of idea revolt in his mind. तो ये से कहते कि से दीर्घ 20 वर्ष है से ग्रांड माँ को गोटे अवस्था देखुंट. तो जिते बड़े कुहा हो कि तुम ग्रांड माँ दिने यंग थिले, युवती थिले, ताकर भी हस्बैंड थिला. तो ये आइडिया को से एक्सेप्ट इजिली एक्सेप्ट करि पार नथिले. कहीं ना से कहते तो ग्रांड माँ मीन्स ओल्ड लेडी, ग्रांड माँ माने ही तो ओल्ड, एंड तांकु से ओल्ड अवस्था दीर्घ 20 वर्ष है देखुंट. तो ये भी पुणी केते बड़े युवती थिबे बोली से विश्वास करि पार नथिले, एंड यांकर भी जड़े हस्बैंड थिबा बोली से विश्वास करि पारु नथिले. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. तो ये पर्यंत से तांकर ग्रांड माँ का विषय वर्णना करथिले. वर्तमान कहिले कि तांकर ग्रांडफादर तांकर पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर, फोटो, ओके, हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम. ड्रॉइंग रूम रो मैंटल पीस कह जाए ताजा, ताजा उपरे तांकर ग्रांडफादर पोर्ट्रेटा, ग्रांडफादर फोटोटा ओहड़ुला. ओके, एंड दैट मीन्स हिज ग्रांडफादर वाज नो मोर. His grandfather was no more in that world. Okay, and that's why he can recognize his grandmother. He can only recognize, he come to know about his grandmother from his portrait only, and that portrait is hung above the mantelpiece of drawing room of Khuswant Singh. Khuswant Singh कर ड्रॉइंग रूम बैठक खानार ताजा उपरे तांकर जेजेबापांकर फोटोटा पोर्ट्रेटटा ओहड़ुला. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Okay, just before this paragraph we come to know that Khuswant Singh come to know about his grandfather by seeing the portrait of his grandfather which is hung above the mantelpiece of drawing room, and he found that his grandfather in that portrait, in that picture, wore a big turban and loose fitting clothes. As he was a पंजाबी, ही बिलोंग्स टू पंजाब, जेहेतु से माने पंजाबी फैमिली बिलोंग करुले, तांकर ग्रांड फादर
पिक्चर रे गोटे टर्बानटा पिंधिथिले टर्बान को हाजे पगड़ी पिंधिथिले मुंडरे गोटे पगड़ीटा पिंधिथिले एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस एंड से पिक्चर रे तांको ग्रैंडफादर लूज फिटिंग क्लॉथेस टा पिंधिथिले लूज फिटिंग क्लॉथेस मीन्स पंजाबी कुर्ता से पिंधिथिले his long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old एंड से लंबा लंबा दाढ़ी रखी थे तांकर दाढ़ीटा एते लंबा थिला व्हाइट कलर दाढ़ीटा छाती ऊपर आसिकी पड़ूला एंड से एभलिया देखा जाउथिले सते जेमिति कि पाखापाखी 100 वर्षर मनीष भलिया से पिक्चर रे से फोटो रे देखा जाउथिले ओके तो ग्रैंडफादर को फोटो देखिकी खुशवंत सिंह आकलन कले कि से व्यक्तिर जी कि तांको ग्रैंडफादर अछंती तांको बयस पाखापाखी 100 वर्ष हबो एते बुढ़ा से देखा जाउतले फोटो रे and he did not look the sort of a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. तो एठी तांको फादर को ग्रैंडफादर को पिक्चर टाको प्रेजेंट करिया को जाई से कहउछंती से पिक्चर रे तांको ग्रैंडफादर जेमिति देखा जाउतले सते जेमिति से जणे एभलिया व्यक्ति जहांकर कोनोसी पिला कि कोनोसी वाइफ नथिबे एंड वर्तमान थिबे अनेक गुड़ाए नाती अणनाती माने थिबे okay that means in that portrays his grandfather looks very old who have only lots of grandchildren are present okay तांको एमिति लागुतला कि से व्यक्तिंकर केही वाइफ की पिला माने नथिबे केवल थिबे असंख्य अनेक गुड़ाए नाती नातुणी माने थिबे he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो ये खुशवंत सिंह पिक्चर रे थिबा तांकर ग्रैंडफादर को एंड तांकर ग्रैंडमदर का सहित जेते बडे कंपेयर करूथले तो से पाउथले कि तांकर ग्रैंडमदर तांकर ग्रैंडफादर थारू एज रे टिके कम अछंती एंड से जिनस भी तांकर माइंड रे रिवोल्ट करूथला कि जो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर जने कपल थिबे ओके एंड से भाभी पारु नथिले से विश्वास करि पारु नथिले कि तांको ग्रैंड मांकर हस्बैंड जे कि फोटो रे थिबा व्यक्ति जनक थिबे काहे कि ना से दी जनकर बयस रे टिके तारतम्य देखा जाउथला ओके तो फर्स्ट रु कहउछंती तांको ग्रैंडमा ओल्ड थिले सत किंतु एते ओल्ड नथिले जो ओल्डनेसटा फोटो रे तांको ग्रैंडफादर को थिला ग्रैंडफादर फोटो रे बहुत ओल्ड देखा जाउथले okay as compared to his grandmother who is alive and who is living with खुशवंत सिंह ओके खुशवंत सिंह सहित जे तांकर ग्रैंडमदर रहउथले तांको बयस और फोटो रे थिबा व्यक्ति को बयस रु जते तुलना करूथले से तो तांको ग्रैंडमा को बयसटा को टिके यंग पाउथले तांको ग्रैंडफादर जे कि फोटो रे थिले तांको बयस ठारू सेति पई तांको माइंड रे गोटे आइडियाटा रिवोल्ट करथला से विश्वास करि पार नथले कि तांको ग्रैंडफादर कर हस्बैंडटा से फोटो रे थिबा व्यक्ति हेइथिबे She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Okay? तो कहले तांको ग्रैंडमा बेले बेले कोन कहउथले तांको कहउथले कि से जते बेले यंग थिले से जते बेले चाइल्ड थिले से भी गेम खेलुथले ओके तो खुशवंत सिंह को एक कथाटा भी विश्वास योग्य लागू नथिला कि जड़े व्यक्ति जे कि तांकु से 20 वर्ष है देखुंती जो अवस्था अच्छी रिंकल अवस्था अच्छी एते बुढ़ी हो जाइछंती से भी दिने पिला थिबे तांको ग्रैंड माँ कहउछंती कि मु भी दिने पिला थिले तम भलिया गेम भी खेलुथली कहीं ना पिला बेले बहुत कथा एमती थाए जोटा कि आम माइंड रे सहजरे कौन एक्सेप्ट आम करूँ बहुत गुड़ा जिनस आमको अनडिग्निफाइड लगे अजुक्ति संगत लगे ओके एंड जिते बड़े ग्रैंड माँ कहते कि से पिला बेले गेम खेलुले ओके सेटा खुशवंत सिंह को गोटे मन गड़ा कहानी लगुला अजुक्ति संगत बोली लगुला एंड सेटा को से माने ट्रीट करुले फेबल्स ऑफ प्रॉफिट यूज ओके तांकु लगुला कि कौन सी परिदेशर कहानी कौन सी पौराणिक कहानी बोली लगुला जोटा कि जेजेमा कहते कि मु भी दिने पिला थी मु भी तुम मान भाया गेम खेलुली यही घटनाटा तांकु एब्सर्ड लगुला एब्सर्ड मीन्स अनरियल तांकु लगुला विश्वास योग्य हो नथिला ओके एंड यही प्रकार सब किसी घटना थिला जोटा कि तांको माइंड रे रिवोल्ट करूथला फर्स्ट जिनिस कि जेते बेले तांको कहा जाउथला कि तांको ग्रैंडमा यंग थिले प्रेटी थिले से कथाटा को से तांको माइंड रे सहजरे एक्सेप्ट करि पारु नथिले रिवोल्ट करथला तांको माइंड सेकंड जिनिस जेते बेले तांकर ग्रैंडफादर फोटो को ग्रैंडमा सहित से तुलना करूथले
सेटा को भी से एक्सेप्ट करि पारु नथले कि दी जण कपल हेथिबे। थर्ड जिनिस जेते बेले तांको ग्रैंड माँ कहूथिले कि मु यंग थिली, मु चाइल्ड थिली एंड मु गेम खेलुथिली, से जिनिसटा को भी से खुशवंत सिंह जेते बेले चाइल्ड थिले, पिला थिले, से सब कथा को एक्सेप्ट करि पारु नथिले। वर्तमान आमे नेक्स्ट पैराग्राफ को जिबा। नेक्स्ट पैराग्राफ रे से तांकर ग्रैंड माँ को विषय रे जो चित्रणटा करिसेंती, ग्रैंड माँ कर मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, तांकर मीन्स तांकर बिहेवियर, तांकर जस्ट केमिति से घरे चलुथिले, केमिति तांकर स्वभाव थिला, से सब कथा से नेक्स्ट पैराग्राफ रे वर्णना करिसेंती। देखिबा नेक्स्ट पैराग्राफ को देखिबा। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. That means in this paragraph, the writer is going to portray the physical appearance of his grandmother. As he told that his grandmother was short in height, slightly fat and slightly bent. That means it is a तांको grandma करो फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक गठन को से वर्णना करिया को जाउछंती। कहिले कि तांको ग्रांडमा हाइट रे टिके गेड़ा थिले, शॉर्ट थिले एंड टिके मोटी थिले, एंड तांकर अंटाटा टिके बंका हो जाइतला। जेहेतु से बुढ़ी हो जाइतले, वार्धक्यर शेष अवस्था रे पहुंची सारी थिले, सेति पई तांकर अंटाटा टिके बेंड हो जाइतला। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तांकर मुखमंडल रे, चेहरा रे, मुहरे चारि आड़ू दाग पड़ जाइतला। दैट मीन्स जोटा कि आमे कहिबा कि ओल्ड एज रो गोटे साइन। ओके, ओल्ड एज रो साइन ता तांको मुह सारा सेटा पड़ जाइतला, क्रिस क्रॉस मार्क। दैट मीन्स द मार्क, और वी कैन से दैट कि जस्ट तांको मुहरे झुरी पड़ जाइतला। ओके, दैट मीन्स तांकर जो स्किन थिला सेटा नरमी जाइतला, एंड स्किन रे दाग सब आसी जाइतला। इट इज ए साइन ऑफ एज आमे कहि परिबा। क्रिस क्रॉस मार्क रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। दैट मीन्स मुह सारा तांकर जस्ट चेहराटा सारा क्रिस क्रॉस मार्क थिला। ओके, नो वी वेर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। इट इज ए कहते कि से सेम स्टेज रे अछंती, सेमिति अछंती जेमिति कि वी आर सर्टन, वी नो हर दैट मीन्स फ्रॉम बर्थ, फ्रॉम द टाइम व्हेन द राइटर खुशवंत सिंह गॉट हिज consciousness. From that time to 20 years age, he found his grandmother in the same stage. There is no change in the appearance, there is no change in the texture of his grandmother. Okay, and we are certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. कहले से एते ओल्ड हो जाइतले, एते भयंकर भाव रे ओल्ड हो जाइतले। टेरिबली ओल्ड मीन्स भयंकर भाव रे। दैट मीन्स ओल्डनेस रो, ओल्ड एज रो लास्ट सीमारे से पहुँची जाइतले, जोठिरु कि से आउ आगु को ओल्ड हो पारिबे नाही। दैट मीन्स हमें कहि परिबा एंड पोजिशन रे, ओल्डनेस रो एंड लिमिट रे से पहुँची जाइतले। एंड सेम अवस्था रे से दीर्घ 20 वर्ष हला खुशवंत सिंह तांकु देखुछंती। देयर इज नो चेंजेस इन हिज अपीयरेंस, देयर इज नो चेंजेस इन हिज फिजिक, there is no changes in his texture. Okay, and 20 years काल से same अवस्था रे अछंती। She could never have been pretty, but she was always beautiful. And हेठी कहले से केवल प्रेटी नथिले, देखिबा पई से सुंदर प्रेटी नथिले, एंड देखिबा को भी से सुंदर थिले। That means as being old, okay, her face having a prettiness and cuteness. Okay, से कहले तांकर ग्रैंडमा जेहेतु बुढ़ी ही जाइतले सत, किंतु तांको फेस रे गोटे प्रेटीनेसटा थिला, क्यूटनेसटा थिला, टिके ब्यूटीटा भी से थिला। ओके, दैट मीन्स एज ए ग्रैंडसन ही इज नरेटिंग हिज ग्रैंडमदर्स पिक्चर विथ वर्ड्स इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। ओके, जेहेतु से ग्रैंडसन थिले,
ओके तांकर ग्रैंडमा जी कि तांकर कंपेनियन थिले जी कि तांकर कंफर्ट थिले ओके जी कि तांकर जने बेस्ट कौन थिले फ्रेंड थिले तांको से बेस्ट पॉसिबल वर्ड रे बेस्ट पॉसिबल वे रे एक्सप्रेस करूछंती तांको ग्रैंडमा केमिति देखा जाउथिले तो आगु को जीवा कौन से वर्णना करछंती She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. ब्यूटिफुल जिनसटा वर्णना कर ग्रैंड माँ विषय रे कहले शी होबल्ड अबाउट द हाउस होबल्ड मीन्स छोटे छोटे की चलवा ओके जेहेतु से तांकर अंटाटा बेंड हो जाइथिला ओके बंका हो जाइथिला तांकर अंटा से छोटे छोटे की चलुथिले केमिति चलुथिले शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट स्पॉटलेस व्हाइट मीन्स से व्हाइट कलर साड़ी पिंधि कौन से कौन सी गोटे दाग भी लगी नथला प्योर व्हाइट साड़ी से पिंधि विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप कहा जाए पाद को कहा जाए स्टूप कहा जाए पाहुंड को कहा जाए ओके से तांकर पाहुंड पकेला बेलू टिके छोटे छोटे की चलुले से निजर पाहुंड को निजर पाद को संभाळिबा को जाइकी गोटे हाथ को से अंटारे रखुले जहाद्वारा कि से तांकर चालीटा को संभाळिकी चली पारुले कहीं से बेंट हो जाते तुम देखि जो मैंने अत्यधिक बुढ़ा हो जाते अत्यधिक वार्धक्य पहुँची जाती से अंटारे टिके बेंड हो जाए एंड से माने चलला बेले गोटे हाथटा को अंटारे रखिकी चलती जहाद्वारा कि तांकर बैलेंसटा मेंटेन होती से माने आराम रे आगु को मूवमेंट करें तो ग्रैंड माँ क्षेत्र में सेम जिनसटा होता से वार्धक्य उपनीत हो जाते से अंटाटा बेंड हो जाता एंड निजर चाली को निजर जस्ट पाहुंड को कंट्रोल करने को जाई मैनेज करने को जाई से गोटे हाथ अंटारे रखिकी आगु को अग्रसर होते ओके एंड घर चारिपटे घर अगणा चारिपटे से दिन सारा बुलूले गोटे हाथ अंटारे रखुले एंड स्पॉटलेस व्हाइट धला रंगर शाड़ीटे पिंधि ओके एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोसारी गोटे हाथ अंटार रोला आ गोटे हाथ में रोसारी रोला जपमाड़ीटा रोला तार बीड्सटा को जपमाड़ीर जो दानाटा को बीड्स बोली कहा जाए ओके गोटे हाथ में जपमाड़ी धरिकी से भगवान को स्मरण करुले भगवान को नाम को स्मरण करुले Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. Okay, कहले तांकर silver locks means lock एटी कहा जाए तांकर बेणीटा चुटीटा सिल्वर कलर दैट मीन्स ओल्ड हो जाते से व्हाइट कलर तांकर हेयर थिला तो से सिल्वर लॉक्सटा स्कैटर्ड होगी तांकर मुह उपर पड़ता अनटाइडली ओके अनटाइडली मीन्स आबड़ा खाबड़ा होगी दैट मीन्स भल भाव में सजड़ा हो नाला सीटा फेस रे पड़ता को फेस रे पेल एंड पकड़ फेस मीन्स फिका पड़जा मलिन पड़जा फेस एंड पकड़ मीन्स जोटा कि क्रिस क्रॉस मार्क थिला कहले पकड़ फेस जोटा को देखा एत कौन ब्यूटीफुल मीन्स क्लीयर नथिला फेसटा से फेस उपरे तांकर हेयरटा मीन्स खोली होगी असजड़ा होगी पड़ता एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स तांकर जो पार्टीटा थिला मुहटा थिला सब बड़े इनऑडिबल प्रेयर्स रे चलुला दैट मीन्स से भगवान को स्मरण कर चलते जोटा कि से पार्टीर मुवमेंटा लिप्सर मुवमेंटा जना पड़ता किंतु वॉइसटा किसी शुणा जाऊ नथला यस शी वाज ब्यूटीफुल यस शी वाज ब्यूटीफुल एरा खुशवंत सिंह कहते यस से देखा बहुत सुंदर थे दैट मीन्स गोटे कामनेस क्वाइटनेस मध्य थिला शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन तो हियर खुशवंत सिंह इज गोइंग टू खुशवंत सिंह कंपेयर्स हिज ग्रैंडमदर विथ द लैंडस्केप ऑफ विंटर हाउ एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट तो एमती वर्णना कर जमीती कि विंटर सीजन रे आमे विंटर लैंडस्केप को देखा पहाड़टा शांत होगी थाए बरफ आच्छादित होगी थाए देखा बहुत सुंदर लगी था सेमती एंड जमी पहाड़टा शांत स्वभाव थाए सेरेनिटी कहवा काम होगी थाए क्वाइट होगी थाए ओके एंड से भाया ग्रैंड माँ स्वभावटा
शांत थिला स्वभावटा काम थिला ओके तांकर नेचर रे तांकर बिहेवियर रे कामनेस थिला एंड सदे जेमिति लागुथला से लाइफ रो सैटिस्फाइड अछंती लाइफटा से जहाँ लीड करिसंती सेथरो से लाइफ रो कौनसी कंप्लेन तार नाही ओके एंड ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट कहवा सैटिस्फैक्शन को दैट मीन्स शी वाज looking very calm quiet in her nature okay and having complete satisfaction in his life okay life रे कौन सी कंप्लेन नथला कहा सहित झगड़ा करवा पाटितुंड करवा क्या जोरे चित्कार करवा किछि नथला केवल से घर चारिपटे अगणारे बुलुथले एंड तांकर जो रोसारी थिला मीन्स जपमाड़ी थिला सीटा को से गड़ौथले भगवान को स्मरण करथले एमिति करिकि से तांकर दिनटा बितौथले ओके Here in this particular chapter we come across the beautiful picture of grandmother as well as Khushwant Singh's grandfather okay he gives a slight information about his grandfather who is in the portrait in the picture which is hung on the mantelpiece of his drawing room and he also gives a clear cut idea about his grandmother's nature his grandmother's physical appearance etc okay